Hello students, welcome back to my next video lecture. In this video lecture, we will do some numericals based on photoelectric effect and Planck's quantum theory. Okay, we will do some numericals based on these two topics, and these two topics are already discussed in my previous videos. Okay, so let us take first this numerical. Okay, question number 13 is written in front of that numerical. A photon of wavelength 4 into 10 raised to power minus 7 meter. Okay, there is a photons are present in light now. There is a light, and that light, or you can say that photon, has wavelength 4 into 10 raised to power minus 7 meter. Okay, that strikes on the surface of a metal. There is a metal. Okay, that photon strikes on that surface of metal. Okay, and the metal surface having work function 2.13 electric volt. This metal has work function 2.13 electric volt. Okay, so you need to calculate energy of photon, कि ये जो photon आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, कि जो आपके पास यू नो दैट व्हेन फोटोन स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल and if that photon is energy greater than work function of the metal, then the electron gets ejected out from the surface. You have to calculate kinetic energy of the ejected electron also. So this is the part. Okay, so first part, these are the parts which we have to solve in this numerical. First part is to calculate energy of photon which is falling on the metal surface. Okay, we know that according to Planck's quantum theory, energy of photon is equal to h into nu. This is the formula given by the Planck, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the photon. But here wavelength of photon is given, not frequency of photon is given. So but we know that lambda into nu equal to c. We have relation between wavelength and frequency. अगर आपको वेवलेंथ पता है तो उससे फ्रीक्वेंसी निकल ही जाएगी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा ना. सो दिस इज इट. ओके, सो ये एज इट इज अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ओके, तो आपके पास यहाँ पे c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच इज़ ऑलरेडी गिवन. कितनी गिवन थी आपके पास? ये रही 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर. लैम्डा इज 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ओके, एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 joule into second. You just need to put values here, then the energy of photon comes out to be 6.626 into 10⁻34 into c, 3 into 10⁸ divided by lambda 4 into 10⁻⁷. So on calculating this we will get E equal to 5 into 10⁻⁻19 joules. One more thing, if you are going to calculate energy in SI units, means in joule, then you have to use all the units, all the quantities in SI units, means you have to use h, and the h should have units in SI units. Similarly c, speed of light, should have units according to SI system. Similarly lambda should also have the units according to SI system. Okay, and note it here,
जो सी है वो मैंने मीटर पर सेकंड में लिया है, लैम्डा जो है वो मीटर्स में दिया हुआ है, और एच जो है वो जाउल सेकंड में दिया हुआ है। और ये जितने भी यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में यही होते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना है कि अगर आपने यूनिट जो आंसर निकालना है वो एसआई सिस्टम वाले यूनिट्स में निकालना है, तो उस टाइम आपको जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ करनी है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल वो सारी भी एसआई सिस्टम में ही उनके यूनिट हों। क्लियर? तो एनर्जी आपके पास आ गई इतनी जाउल्स। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड, यू कैलकुलेटेड energy of photon, this is what you calculated. Okay, now the kinetic energy of emission, emission का मतलब क्या है? emitted electron. kinetic energy of emission means kinetic energy of emitted electron, इसकी kinetic energy कितनी होगी ये निकालना है आपको। ठीक है, so this is our second part. Okay, first part is there is one more trick. You have to calculate energy of photon in electric volt. Electric volt क्या होता है? Electric volt is also unit of energy but it is a small unit. बट आपने एनर्जी ऑफ फोटोन अभी किस में निकाली है? जाउल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जाउल। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक वोल्ट और जाउल में। क्लियर? तो जाउल्स को इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे? अब कैसे करेंगे हम? क्लियर? यहाँ से एक जाउल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 जाउल इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा ना। ठीक है, तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन करनी है जाउल टू इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो क्या करोगे? यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ 1 जाउल हेयर। तो वैल्यू ऑफ जाउल अगर पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 1 जाउल की वैल्यू क्या आ गई? ये 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक वोल्ट। 10⁻⁹ से 10⁻⁹ गया तो एनर्जी कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाई 1.6 and this comes out to be 50/16 and energy comes out to be approximately 3.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो अगर जो फोटोन है उसकी एनर्जी आपने इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट बतानी है देन दैट एनर्जी इज इक्वल टू 3.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, जो ये फोटोन स्ट्राइक करवाने जा रहा है ये वाला मेटल पे, इसकी एनर्जी कितनी है? 3.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट। बट अगर आपने इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक वोल्ट में ना बोल के जाउल में बोलना होता फिर तो वो पहले ही हो चुका था, 5 इंटू 10⁻⁹ जाउल्स। ओके, क्लियर? वो जाउल और इलेक्ट्रिक वोल्ट की तो कन्वर्जन हमने बाद में करी है। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, लेट मी वेट, let me erase this first. Now first part is solved. Now come to the second part. Second part में हमने क्या करना है? Kinetic energy of emitted electron कैलकुलेट करनी है। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला क्या दिया था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ओके, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है? 3.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट। यही तो हमने कैलकुलेट की। इंसिडेंट लाइट मतलब इंसिडेंट फोटोन, उसकी एनर्जी कितनी है? 3.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ओके, एंड वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? 2.13 इलेक्ट्रिक वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सरफेस पे, जो मेटल की सरफेस है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितनी फोर्स के साथ, कितनी एनर्जी के साथ बाउंडेड है, दैट इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन comes out to be 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अगर मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक वोल्ट में ना निकाल के जाउल्स में निकालनी होती तो यू नो दैट 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जाउल। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जाउल्स में निकालनी है तो इलेक्ट्रिक वोल्ट की वैल्यू अगर जाउल पुट कर दो, जाउल में कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जाउल। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाता 1.6 इंटू 10⁻⁹
जाउल। बट अभी इसमें कोई दिया ही नहीं हुआ, जैसे इसमें दिया पिछले कोई पार्ट में दिया हुआ था कि आपको इलेक्ट्रिक वोल्ट में ही निकालना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन आपने इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालना है कि जाउल में निकालना है। तो आप दोनों में से किसी यहाँ तक निकाल दो वो भी ठीक है। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज डन विद द न्यूमेरिकल नंबर 13. Okay, both parts are solved. Now we will solve another numerical, that is question number 12. Okay, so question number 12 is a 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Bulb, watt किसका यूनिट होता है? What is watt? Watt किसका यूनिट होता है? Watt is unit of पावर, पावर का यूनिट होता है ये, ठीक है। मतलब आपको, और पावर क्या होती है? एनर्जी बाय टाइम। ओके, एनर्जी जाउल में, टाइम सेकंड में। एट दैट टाइम द आंसर ऑफ पावर कम्स आउट टू बी इन वॉट। ओके, ये बेसिक 10th क्लास फंडा है। ओके, मतलब जाउल पर सेकंड इज रिटन एज वॉट। क्लियर? इट मीन्स जो बल्ब, ये जो बल्ब है जो एनर्जी छोड़ रहा है, जो लाइट छोड़ रहा है, ओके, जिसकी पावर रेटिंग 100 वाट दी हुई है, उसका मतलब क्या है कि दैट इज एमिटिंग 100 जाउल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। वाट की जगह जाउल पर सेकेंड लिख दो, ठीक है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। उन्होंने बोला कि 100 वाट ऑफ बल्ब है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एमिट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि आपके पास वो जो लाइट एमिट कर रहा है वो एक ही वेवलेंथ वाली है। जैसे सनलाइट जो होती है उसमें तो आपके पास 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है। बट बल्ब जो लाइट एमिट कर रहा है दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। क्लियर? मतलब सारी वेव्स एक जैसी वेवलेंथ वाली होंगी जो वो एमिट करेगा, दैट इज 400 नैनोमीटर। क्लियर है? अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। बल्ब एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट कर दे रहा है ये निकालना है आपने। ओके, क्लियर? अब मेरे को दिख रहा है कि इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन emitted by bulb, कि जो आपके पास फोटोन एमिट हो रहे हैं बल्ब से, उनमें से एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए फॉर्मूला वही एच सी बाई लैम्डा लगा देंगे हम। एच 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय सी 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ और लाइट की वेवलेंथ तो दी हुई है 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर मीन्स 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि एक नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है, सो दिस इज इट, 400 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेटली 19.8 बनता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10 की पावर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻⁷ एंड 20, इसको 20 लिख देते हैं, 20/4 इंटू 10⁻⁹, ये 10 की पावर 2 भी मैं ऊपर ले गया हूँ, मतलब इट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁻⁹। ओके, सो जाउल, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻⁹ जाउल।
बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, कि जो बल्ब है वो एक सेकेंड में कितनी, सॉरी, जो बल्ब है वो एक सेकेंड में कितने फोटोन्स छोड़ रहा है। बल्ब कितने वॉट का है, 100 वॉट का। ओके, तो अगर 100 वॉट का बल्ब है तो सबसे इट मीन्स एक सेकेंड में वो एनर्जी कितनी छोड़ रहा है, अगर 100 वॉट का बल्ब है, इन 1 सेकेंड एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब वो कितनी है, 100 जूल। तो हमने यही नहीं देखना कि 100 जूल में कितने फोटोन होंगे, क्योंकि बल्ब जो है वो एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ओके, तो इट मीन्स अगर हम ये निकाल लें कि 100 जूल एनर्जी बनाने के लिए कितने फोटोन लगते हैं, और हमें पता लग चुका है कि बल्ब जो फोटोन एमिट कर रहा है उसमें उसकी एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ऐसे कितने फोटोन लगेंगे 100 जूल एनर्जी बनाने के लिए, वो कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इन 100 जूल वो कैसे आ जाएगा, 100 जूल टोटल एनर्जी जितनी आपको चाहिए डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है, 5 × 10⁻⁻19 जूल। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, 20 × 10⁻19 फोटोन्स। ओके, मतलब 20 × 10⁻⁹ फोटोन्स जो हैं वो मिलके 100 जूल ऑफ एनर्जी बनाएंगे। दे आर गोइंग टू फॉर्म 100 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर, हम अब क्वेश्चन में एक बार दोबारा फटाफट से क्विकली मैं आपको समझाता हूँ। 100 वॉट का बल्ब है, मतलब 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज करता है, एमिट कर रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड 100 वॉट का मतलब है कि पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है। ओके, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी जब वेवलेंथ इतनी होगी, वो हम निकाल चुके हैं बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो एक फोटोन की एनर्जी जब हमने निकाल ली तो एट दैट टाइम हुआ क्या, हमने अगर एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली तो टोटल आपके पास 100 जूल एनर्जी आपको चाहिए। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स विच विल मेक 100 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, और वही तो निकालना है, क्योंकि 100 जूल ऑफ एनर्जी इज एमिटिंग इन 1 सेकेंड, और यही आप अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी इज एमिटिंग इन 1 सेकेंड, तो 100 जूल में फोटोन कितने होते हैं वो हमने पता लगा लिया कि अगर 100 जूल में नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने तो वो कितने बनेंगे, 20 × 10⁻19 फोटोन्स इन केस ऑफ दिस बल्ब। और इतने जूल ऑफ एनर्जी एक सेकंड में एमिट कर रहा है, इट मीन्स वो 20 × 10⁻19 फोटोन्स एक सेकंड में एमिट कर रहा है, दैट्स इट। सो दीज आर दी टू न्यूमेरिकल्स एंड दीज टू न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।